डॉक्टर अल्ताफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है उजैर? जी अब कर रहे हैं इसे नाउ। ठीक है, I'll start. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to yet another ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with expert, and our expert for tonight is Professor Altaf Alam. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO, based in USA, with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for question or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Janas and Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of folks, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight's session, Professor Retired Altaf Alam, is consultant gastroenterologist, hepatologist, Evercare Hospital, Lahore. He is trained gastroenterologist with more than 20 years of experience in his specialty and is author of more than 50 publications. He is serving as course director at PARSA ECHO Pakistan since the beginning. He is responsible for developing curriculum, observing quality of the content, evaluating speakers, and feedback regarding the evaluation. We have two cases today, and Dr. Mishal will be presenting these cases. So I will hand over to Dr. Mishal. Dr. Mishal. Zaid, if you can share the first case, Professor Altaf Alam is here. If you can just share the first case, and then Mishal can take over. Yes, I am just sharing it. मुझे लगता है आपका नेट स्लो है, इस पे अभी शो नहीं हो रहा। ये तो आ रहा है कि आप you have started. Yes, now it's showing. Okay. Assalamu alaikum. So first case is about a young male, 40 years old. He was a non-smoker, non-alcoholic, presented with history of loose motions on and off for last 3 months, weakness and body pains. There is no other comorbidity, no family history of hepatitis B virus, C virus, or HCC. He had a history of roadside accident about 3 years ago, in which he got his leg fractured and open fixation was done. His baseline investigations were done, which were like almost normal, as you can see. He was positive for hepatitis B virus surface antigen. Anti-HCV was negative. There was a significant viral load for hepatitis B virus. Hepatitis B E antibody was positive, and E antigen was negative. But he was also positive for anti-HBV and anti-HIV. PCR was done for both HBV and HIV. HIV PCR came positive. So he was having co-infection with hepatitis B virus and HIV.
Ultrasound was normal, fibroscan was normal. What is the impact of HIV on the natural history of hepatitis B virus, and how should we manage this patient? Thank you, Mishal. This is a patient from our trust clinic, and there's a young chap with history of loose motions and weight loss, as far as I remember. Or if you see the labs, इनके LFTs disturbed थे, और जो रूटीन स्क्रीनिंग है उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था. Albumin is good, लेकिन ALT 87, AST was 154. और with surface antigen positive, usually our policy is कि हम सिर्फ DNA कराते हैं हेपेटाइटिस बी का, और उसके बाद अगर DNA पॉजिटिव होता है तो हम अपने जो जितने ये ट्रस्ट के पेशेंट्स होते हैं, हम इनकी फर्दर लैब्स ई एंटीजन, ई एंटीबॉडी और फाइब्रोस्कैन और ऑफ कोर्स डेल्टा और HIV डिपेंडिंग अपॉन द वायरल लोड. तो इस पेशेंट में जब DNA पॉजिटिव आया तो उसके बाद फिर ये सारे टेस्ट हुए थे, क्योंकि as a policy to consider patient for antiviral nucleoside analog जो हैं, हम उनका डेल्टा और HIV सब लोगों में कराते हैं. इनकी जो serology है डेल्टा और HIV both were positive. I must say कि मैं इसकी जो हिस्ट्री नहीं ले सका, इसके बिहेवियर की, सेक्सुअल हिस्ट्री और वो, लेकिन और फिर दोनों के PCR हुए. तो इफ आई रिमेम्बर, इसका तकरीबन जो HIV वायरल लोड था वो 10 raised to power 5 और 10 raised to power 6 यूनिट्स गालबन था. सिग्निफिकेंट वायरल लोड इसका जो 100,000 से के आसपास था. तो फाइब्रोस्कैन is good, ultrasound is unremarkable. So we are really here to learn from Professor Altaf how we really go about your case, and then I can give you some feedback what actually happened to this guy. Dr. Altaf, over to you. Thank you, Asad. I hope you can hear me. Yes, sir, we can hear you. Right. आज आपने मुझे पकड़ लिया है. I have never. मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया था. मैंने आपको नहीं पकड़ा. Sorry. I have never ever treated HIV in my lifetime. I refer such patients to infectious disease consultant immediately. Fortunately, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में HIV नेशनल HIV कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर एक सेटअप है जो फ्री टेस्ट और फ्री ट्रीटमेंट देते हैं इन पेशेंट्स को. सो बट लेट्स डिस्कस जितना मुझे आता है. पहला क्वेश्चन ये है कि इम्पैक्ट HIV का HBV पर क्या है. इम्पैक्ट इज नॉट गुड. ऐसे पेशेंट्स रैपिडली डिटेरियोरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, सिरोसिस एंड HCC. सो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली कंसिडर करना है ट्रीटमेंट के लिए. हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट तो हमारे लिए बड़ी सिंपल है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है ये देखने की जरूरत है. So number one, such patients should be immediately treated. Number two, इसका हमें HIV स्टेटस देखना है. जिसको डायरिया हो रहा हो और वेट लॉस हो रहा हो, ये लोग मोस्ट लाइकली severely immunosuppressed होते हैं, और ये सिर्फ HIV पॉजिटिव नहीं होते. They are categorized as having full blown AIDS, or they need treatment with antiretroviral therapy or ART as we call it. जब HIV भी हो और HBV भी हो जिसको इलाज की जरूरत हो, तो आपके पास दो दवाइयां ऐसी हैं जो इस पर दोनों पर एक्टिव होती हैं. जो ये दो दवाइयां जो हैं, ये टिनोफोविर
disoproxil fumarate or TDF as we call it, and tenofovir alafenamide. ये दोनों ड्रग्स बी पर भी और HIV पर भी एक्ट करती हैं. सो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करेंगे तो ये HIV के रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स अपीयर होने का चांस होता है. इसीलिए मैंने कहा कि मैं इन पेशेंट्स को कभी खुद ट्रीट नहीं करता, मैं इनको रेफर करता हूं, क्योंकि टेनोफोविर और दोनों एलाफेनामाइड और डाइसोप्रोक्सिल इसको एमट्राइसीटाबीन की कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है. इसके अलावा हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी और हार्ट की ड्रग्स इसमें कंबाइन की जाती हैं. आजकल के दौर में ये एल्विटाग्रेविर और कोबिसिस्टैट, टेनोफोविर एंड एमट्राइसीटाबीन का जो कॉम्बिनेशन है, जो ट्रूवाडा के नाम से आता है, उसके साथ दी जाती हैं. और इन पेशेंट्स को ये दवाइयाँ शुरू करने से पहले CD4 CD8 काउंट का रेशियो देखना होता है कि CD4 काउंट कितना है. अगर वो नॉर्मल वो 500 से 1500 तक होता है, अगर वो 200 से कम है तो आपका पेशेंट इम्यूनोसुप्रेस्ड है, और जितना वो कम होता जाए उतनी सीवियर इम्यूनोसुप्रेशन इस पेशेंट को होगी या इम्यून डिफिशिएंसी होगी. सो कॉम्बिनेशन फॉर बोथ HBV and HIV is the way to go, and these patients should certainly be treated, because if you don't, they get worse. डेल्टा वायरस जो एक दफा नेगेटिव आया है, उसको यहाँ पर ही ना बैठ जाएं, 3 से 6 माह के बाद एक दफा दोबारा जरूर चेक कर लें, क्योंकि anti-HDV पॉजिटिव है और DRNA नेगेटिव है. तो DRNA को एक दफा दोबारा जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये ट्रिकी टेस्ट है और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं है, और फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं. सो यहाँ पर यही है कि CD4 CD8 काउंट लें, सेक्सुअल हिस्ट्री लें, फैमिली स्क्रीनिंग कराएं कि कहीं किसी और को, वाइफ को तो नहीं हो गया इसके, या अगर ये होमोसेक्सुअल है तो सेक्सुअल पार्टनर को तो नहीं है, कहाँ से लगा, इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए और स्क्रीन करना चाहिए फैमिली को. ट्रीट जरूर करना चाहिए, और विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ HBV एंड HIV ड्रग्स. जी असद, आपने क्या किया? आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. जी उजैर, if you can stop share, I think जी सर, मैंने वही किया जो आपने सबसे पहले कहा था. मैंने फौरी तौर पर HIV क्लिनिक देखना शुरू किया. To be very honest with you, this was again one of my, as far as I remember, very few cases. और उसमें जो चीजें मैंने लर्न की, स्पेशली एक तो गुजरांवाला में कोई HIV क्लिनिक नहीं है. The nearest we have is in Lahore and in Gujarat. जो गुजरात में गालिबन अजीज भट्टी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे ये था. एंड मैंने इसको सारा गाइड किया, एंड आई टोल्ड हिम के विद यू नो दीज हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, और यूजुअली जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि कॉम्बिनेशन में है, तो देयर इज अ गुड चांस वी विल बी एबल टू कंट्रोल द डिजीज. And he was then and he listened to my advice and he went to Gujarat. Abhi koi 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले I saw him in the clinic. He was doing well. मैंने उसे पूछा था CD4 CD8 काउंट्स के मतलब, क्योंकि मैंने नहीं कराई थी, तो मेरा ख्याल था कि वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे जो भी इनका क्लिनिक का प्रोटोकॉल है तो वहीं से हो जाए. But he did not have the report. लेकिन द ड्रग कॉम्बिनेशन ही हैड, वो उन्होंने उसको 1 महीने की दवाई दी थी, दैट इंक्लूडेड TDF, lamivudine and 2 other drugs. I think as far as a quadruple combination था, जिसमें हेपेटाइटिस बी के लिए TDF और lamivudine था.
So I think his diarrhea was better. He was probably had some symptomatic treatment. I'm not very sure कि उसको further कितना उन्होंने investigate किया immune compromise उसके लिए, but he also said कि मेरी appetite बेहतर हुई है और weight कोई 1-1.5 किलो का उसका फर्क था. He put on some weight. So he was doing well, but that was an interesting experience. I am not sure whether Farooq है Hafzabad से, I can see him. भुट्टा साहब भी शायद ओकाड़ा से हैं. वहाँ पे I would really like to know कि ECHO के platform पे, because we can come across these cases and at least we should know कि हमने उनको कहाँ पे रेफर करना है. मेरे लिए it was a surprise से गुजरांवाला में कोई भी नहीं है. So I'm not sure. Dr. Farooq, you have something to add here? जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर. हाफिजाबाद में सर जितने पेशेंट्स हैं अभी तक मैंने HIV के साथ कोई इन्फेक्शन तो नहीं देखा, बट HIV के जितने पेशेंट्स आते हैं यहाँ से हम उनको लाहौर रेफर करते हैं और शेखुपुरा में भी इसका सर सेंटर है DHQ हॉस्पिटल में. तो लाहौर वाले फिर उनको बाजुकात है शेखुपुरा रेफर कर देते हैं कि आपको वो ज़रा करीब पड़ता है तो आप वो चले जाएं. एक और चीज़ जो मैंने सर ऑब्जर्व की है, HIV के केसेस हफ्जाबाद में काफ़ी ज़्यादा हैं और जब हम उनको रेफ़र करते हैं तो उनका जिस तरह प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है CDC की और दूसरा जो ID के लोगों के पास है, उसमें प्रॉपरली जिस प्रोसेस के थ्रू उनका CD4 काउंट होना चाहिए, अमूमन इस तरह नहीं होता. जिना हॉस्पिटल की जो एक पेशेंट है फॉलो अप पे, उसका मैंने देखा कि उसका जब CD4 काउंट ड्रॉप किया तो उन्होंने बल्कि उसको सेप्ट्रॉन DS पे भी रखा कोई 3 से 6 माह के लिए, ताकि सुपर एडेड निमोसिस्टिस वगैरह ना हो जाए. तो उनका प्रोटोकॉल कुछ अच्छा है. अदरवाइज एक और चीज़ जो इसमें मतलब मुझे भी 2-3 दिन पहले ही पता चली, वो ये थी कि जो बच्चे हैं जिस तरह फादर या मदर को HIV, मदर को स्पेशली HIV है, तो उसके आफ्टर डिलीवरी बेबी को जो 3 मंथ्स के लिए प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है, वो लाहौर में कहीं से भी नहीं मिलता सिवाय सर्विसेज हॉस्पिटल के पीड्स डिपार्टमेंट से. तो वो भी एक रिकमेंडेशन है उनकी तरफ से कि वो भी दिया जाए, और अगर फादर को है और मदर को नहीं है तो फिर बेबी को प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत नहीं है. और बाकी जो मे हॉस्पिटल है, और आई एम सॉरी टू से कि इनका ना कोई ऐसा इतना डेवलप नहीं है HIV सेंटर, और वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह बैठे होते हैं जिना हॉस्पिटल में, उनको शायद थोड़ा सा प्रॉपर्ली ट्रेन करके बिठाया होता है या उन्हें फ्रेश गाइडलाइंस पढ़ी होती हैं. तो शेखुपुरा का आइडिया नहीं है. गुजरात में बहुत ज़्यादा HIV है, मेरी कोलीग भी वहाँ पे हैं, और गुजरात में तो जलालपुर जट्टा इज द पाकिस्तान हाईएस्ट उसमें रेट है HIV का इंसिडेंस प्रेवलेंस जो है. और वो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के बहुत सारे लोग फॉरेन में हैं, तो व्हेन दे कम बैक तो उसके बाद फिर उनकी जो वाइफ्स हैं उनको होता है, और फिर इस तरह के क्रॉस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है. वहाँ पे तो पीडियाट्रिक्स के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं गुजरात के अंदर, जलालपुर जट्टा में ख़ास तौर पे. तो इसलिए वहाँ पे शायद शेखुपुरा से भी पहले वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था. लाहौर में भी अभी शायद इतना इस्टेब्लिश नहीं था जब गुजरात में हो गया था. सो इट्स रियली, आपने बहुत अच्छा किया ये केस पुट अप किया कि मुझे भी वैसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमने फिर इसमें क्या करना है. पेशेंट है एक, उसकी जिस तरह आपने सर बताया क्वाड्रुपल थेरेपी, तो ये इसमें एक इशू ये है कि ये ना चूंकि गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के लिए ड्रग्स परचेज करती है या उनको फंडिंग में मिलती हैं व्हाटएवर जो भी है, तो ये ना इनकी ड्रग्स चेंज होती रहती हैं. कभी क्वाड्रुपल थेरेपी आ जाती है, कभी ट्रिपल आ जाती है. अब ज़ाहिर है पेशेंट ना तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है, ना कहीं से प्राइवेट ले सकता है, तो वो जो उनके पास आती है वही वो पेशेंट को आगे दे देते हैं कि जी ये अब ये चलेगी आपकी. वो जब पेशेंट आगे से क्वेश्चन करते हैं, जी पहले तो ये थी, इसमें तो ये गोलियां थी, इसमें ये था, सॉल्ट था, ये था, वो था, तो वो कहते हैं जी ये प्रोग्राम में जो आएगी आपको वही मिलेगी, बस जो भी मिलेगी समझे वो आपके वायरस को ना दबा के रखेगी.
तो इसमें ये भी थोड़े से इश्यूज हैं। अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप अगर शेयर कर दें तो। थैंक यू सर। जी फारूक, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो आपका है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपके जो जो बातें आप बता रहे हो वो बहुत सारी चीजें मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर डेटा इकट्ठा कर सकें, आपकी कोलीग हैं गुजरात में, और ये तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू हाईलाइट दिस। और मैं और अल्ताफ साहब काम करते हैं, वी कैन हैव an echo session, a full echo or couple of sessions on HIV in fact, कि प्राइमरी केयर में अगर HIV का पेशेंट आता है तो how should we proceed, and we can also collect data of the centers। और जो आपने एक और पॉइंट हाईलाइट, आई एम श्योर ये होता होगा कि आज का ट्रिपल है, कल ट्रिपल है, कभी डुअल है, वी डोंट नो, लेकिन हमें इसको जरा इस तरह से देखना होगा। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड। भुट्टा साहब, आपका काढ़ा में क्या एक्सपीरियंस है? आई डोंट नो आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस की मुबारकबाद देता हूँ। इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा अरेंज किया, और बहुत उसमें से लर्निंग हुई हमें। प्राइमरी केयर फिजिशियन हूँ मैं, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जहाँ तक HIV का पेशेंट है, HIV का पेशेंट मेरे पास एक पॉजिटिव सिर्फ आया, लेकिन वो हेपेटाइटिस उसको नहीं था साथ। तो सिंपल उसकी वेट लॉस और इस तरह की हिस्ट्री थी, तो मैंने उसको टेस्ट कराया तो पता चला कि HIV पॉजिटिव है। मैंने फिर उसको कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको सर्विसेज हॉस्पिटल भेज दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रीटमेंट के बावजूद ही एक्सपायर्ड लास्ट ईयर आई थिंक। बट अदरवाइज आई नेवर treated or seen any HIV case in Okada. जी डॉक्टर अल्ताफ, आप क्या, मेरे ख्याल में वी कैन, इफ वी कैन फाइंड अ गुड स्पीकर, आप जरा देखें तो वी कैन डेफिनेटली हैव अ कपल ऑफ सेशंस ऑन HIV फॉर प्राइमरी केयर फिजिशियंस। श्योर आईडी एक्सपर्ट्स हैं मेरे पास। एवर केयर में डॉक्टर यासिर हुसैन है, शौकत खानम में आपको पता ही है फैसल सुल्तान, सर्विसेज में डॉक्टर सोबिया काजी हैं। इनके साथ हम पेशेंट्स रेफर करते रहे हैं, जो भी आता है इन्हीं के पास भेज देते हैं। एंड दे आर प्रोवाइडिंग, और जिना हॉस्पिटल में भी सेंटर है जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एक्चुअली कहीं भी कोई पेशेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं भी, जैसे मेरे पास एवर केयर में पेशेंट आया तो ना सिर्फ उसको हमारे आईडी एक्सपर्ट ने देखा बल्कि गाइड किया और अरेंज किया उसकी सेंटर से, और उसको सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट उसके फ्री हुए। उसको शौकत खानम से उन्होंने अरेंज करके दिया था। एंड यू नो इट वाज वेरी गुड, द पेशेंट वाज वेरी हैप्पी कि सारी दवाइयाँ मिल रही हैं और मैं बेहतर हो रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू नो फैसिलिटीज हैं। जैसे फारूक ने कहा, आई एम श्योर के देयर आर प्रॉब्लम्स इन सम सेंटर्स, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि सर्विसेज में और शौकत खानम में और जिना हॉस्पिटल में दे आर डूइंग अ गुड जॉब टू लुक आफ्टर दीज पेशेंट्स। उनको दवाइयाँ मिलती रहती हैं एंड दे डू क्वाइट वेल। सो जैसे कहा है कि जो भी दवाई हो इट वर्क्स, बट जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक चलना होता है। सो आई थिंक के सर्टेनली दिस प्रॉब्लम इज देयर, और हमें इस पर एक या दो सेशंस जरूर करने चाहिए। तो आप देख लें, मैं डॉक्टर यासिर से बात करूंगा, आप फैसल से बात कर लें कि अगर वो एग्री करें तो वील ब्रिंग देम इन वन ऑफ दीज सेशंस एंड वील सर्टेनली इट विल बी इंटरेस्टिंग टू होल्ड सच सेशंस, ताकि हम सबको पता चल जाए कि कम से कम रेफर कहाँ करना है और क्या करना होता है, आजकल की क्या रिकमेंडेशंस है, एटसेट्रा। थैंक यू। सर जी अगर मैं ऐड करना चाहूँ सर, हमारे हाफजाबाद में मेरा ख्याल इतनी ज्यादा प्रेवलेंस हो गई है कि अब गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट HIV सेंटर इन हाफजाबाद DHQ। अभी कुछ मंथ्स तक होने वाला है इंशाल्लाह स्टार्ट। तो ये बिल्कुल सेम कॉपी होगी जिस तरह दूसरे हॉस्पिटल्स में जिना में सर्विसेज में है।
तो उसके ऊपर अभी सारा वर्कअप हो रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा केसेस मिलेंगे। अभी कल येस्टरडे मेरा हफ्जाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर विजिट था, तो वहाँ पे तकरीबन 15 पेशेंट्स थे जो HIV पॉजिटिव थे, और उनमें से कुछ थे जो हार्ट थेरेपी तकरीबन 10 के करीब थे जो ले रहे थे, एंड दे वर डूइंग वेरी वेल, मतलब उनको कोई इशू भी नहीं था, कोई एक्टिव कंप्लेंट भी नहीं थी, और 5 ऐसे थे जिनके PCRs गए हुए थे सेंटर्स में और वो अवेटेड थे। तो जैसे ही वो आते हैं PCRs, तो वो फिर उनके पास जो मेडिकेशन अवेलेबल होती है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दी जाती है। तो अब जो मेडिकेशन अवेलेबल हैं इनकी वजह से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 3-4 साल से, कि एड्स में तो बहुत ही कम पेशेंट आते हैं, और HIV जब ट्रीट होता रहता है तो पेशेंट आर डूइंग सो वेल कि उनको पता ही नहीं होता शायद हमें HIV भी है कि नहीं है। जी, thank you. Any other question, or we move on to the next case? Okay. हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। जी उजैर, प्लीज इफ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस फॉर टुडे। Yes, sure. Okay. Dr. Michelle, are you with us? Next case, it's about 55 years old male who was known C positive. He was already in treatment with direct acting antivirals for 6 months. Only after 1 month of starting treatment, he presented with 2 to 3 episodes of hepatitis and melena. There was no other comorbidity. His endoscopy was done, and on endoscopy there were clean-based ulcers in first part of duodenum. His labs were done. HB dropped to 7.7, and like rest was normal. Bilirubin raised to 5.2. Ultrasound show early cirrhotic changes, splenomegaly, and mild abdominopelvic ascites. His child score was B9. Should we continue treatment with antivirals? And how should we manage this patient? जी, थैंक यू मिशाल, आपने थोड़ा सा जरा काफी इसको मैं जस्ट इसकी जो हिस्ट्री है, वी हैव अ नोन C positive patient who was prescribed treatment for 6 months because his APRI was high or more than 1.5 जैसा हमारे सेंटर में होता है, and usually we treat them for declataspid, sofosbuvir and ribavirin. और रूटीन में हम इन लोगों को एंडोस्कोपी ऑफर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास कम से कम है जो प्रीएम्प्टिव या स्क्रीनिंग जो सर्वेलेंस में और स्क्रीनिंग में, दे डू नॉट एग्री फॉर दिस एंडोस्कोपी। तो जो नंबर्स थे प्री ट्रीटमेंट, यू कैन सी हीमोग्लोबिन 11.3 है, और इसमें बिलिरुबिन भी अच्छी है, एल्ब्यूमिन 3 है, INR 1.1 है, but with the episode of upper GI bleed, or that is with it happened within 3 weeks, तो hemoglobin का drop है, and you can see bilirubin is 5.2, albumin is 2.8, INR पहले 1.1 था, now it's 1.6. तो clearly this gentleman has decompensated, and ultrasound showed mild ascites also. So now we would really like opinion from Professor Altaf. In this scenario, how should we be proceeding? You know, there are multiple issues about patient overall prognosis, about continuation of antiviral treatment, and you know, if not, then what to do. Ji, Dr. Altaf, please. Thank you, Asad. Thank you, Dr. Mishal. ये very typical scenario है. Cirrhotic patient should be managed or treated in a setup जहाँ पर हर facility मौजूद हो, क्योंकि you never know कि when these patients develop ascites, SBP, upper GI bleed,
etc etc. So treatment is fine. Probably इसको soft declaraiba दिया होगा from your own center ताकि cost contain रखी जा सके. And of course the treatment duration is 6 months. 1 महीने के बाद उसको bleed हुआ और अब अगर numbers देखेंगे तो ये काफी खराब हो गए. Creatinine 1.5, bilirubin 5.2, albumin 2.8 and INR 1.6. ये थोड़े से worrying हैं, लेकिन ये surprise नहीं है. Cirrhotic patients को कुछ भी हो जाए, upper GI bleed हो, SBP हो, कोई और infections हो, तो ये उनके numbers typically deteriorate करते हैं और ये improve भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि transplant or no transplant, but you know, I would certainly keep that in the background, or in terms of resuscitation would try and bring up his hemoglobin by blood transfusion. ये variceal bleeding नहीं है, so आप वो hemoglobin of 7 or 8 के चक्कर में ना रहें, इसको 10 के करीब लाएं. और एंटीबायोटिक्स देनी होंगी क्योंकि एसाइटिस है, ऐसे पेशेंट्स में एसबीपी हो जाता है, व्हाटएवर द कॉज ऑफ ब्लीडिंग. एनकेफेलोपैथी को प्रिवेंट करेंगे. विद इन 2 to 3 days आप देखेंगे कि ये पेशेंट्स इंप्रूव करते हैं. यहाँ तक कि आप ट्रांसप्लांट को भूल जाते हैं. क्रिएटिनिन यूजुअली नॉर्मल हो जाती है, बिलिरुबिन नीचे आना शुरू हो जाती है और आईएनआर इंप्रूव कर जाता है. So I would certainly, in terms of question number 1, I would certainly like to continue in antivirals if I can after a gap of 3 to 5 days. आमतौर पे यही पीरियड होता है जिसमें आइदर ये इम्प्रूव और डिटेरियोरेशन का ट्रेंड दिखाते हैं. अगर डिटेरियोरेट हो रहा है फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि नीड्स टू गो फॉर ट्रांसप्लांट. लेकिन अगर इम्प्रूव हो जाता है, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाती है, बिलिरुबिन नीचे आना शुरू हो जाती है, हीमोग्लोबिन 10 प्लस है, आईएनआर इम्प्रूव कर रहा है, तो सर्टेनली आई वुड लाइक टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट. 2 से 5 दिन की ट्रीटमेंट की डिसकंटिन्यूएशन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ये इंटरफ्रॉन नहीं है जहां पर हम कहते थे कि 80% का रूल, 80% डोज 80% ऑफ द टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ पर अगर कुछ दिन ड्रॉप भी हो जाए तो इट वर्क्स. सो आई थिंक इसका 85% के करीब चांस है टू गेट क्योर एंड वी शुड कंटिन्यू after 3 to 5 days if numbers improve after resuscitation. बाकी फर्दर मैनेज का तो यही है कि you will have to look for H. pylori. इसके अल्सर्स निकले हैं, वेरिसियल ब्लीडिंग नहीं है, and treat if present ताकि फ्यूचर में ब्लीडिंग का चांस ना हो. बी की वैक्सीनेशन करनी चाहिए, अगर अभी तक हमने नहीं किया है, हम बहुत कमजोर हैं इसमें, और अगर इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वी शुड वैक्सीनेट. वी शुड फॉलो हिम अप वेरी वेरी केयरफुली, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ. आप राइबाविरिन भी दे रहे हैं तो अगर हीमोग्लोबिन 10 प्लस आपने कर लिया तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हीमोग्लोबिन ड्रॉप तो नहीं कर रही. आमतौर पे अगले 2 हफ्ते के लिए एवरी वीक इसके टेस्ट कराएंगे एंड देन मे बी एवरी 2 to 4 weeks देयर आफ्टर. ये इसकी मैनेजमेंट होगी. ऑफ कोर्स अल्सर्स की ट्रीटमेंट के लिए इनिशियली फॉर 3 days आप IV ओमेप्राजोल देंगे और उसके हाई डोज में 80 milligram इन्फ्यूजन स्टैट फॉलोड बाय 8 milligram per hour, और आफ्टर 3 days आप उसको ओरल पे रखेंगे ऑफ गुड क्वालिटी ओमेप्राजोल which should be continued for at least 2 months. And you can always scope again after 2 months to see if things are okay, the ulcers have healed. अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई पॉजिटिव आ जाए तो इसको ट्रीट करेंगे. ऑफ कोर्स अगर फॉलो अप पे आपको नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे, थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग रादर डिटेरियोरेटिंग, तो ही इज हेडिंग टुवर्ड्स लिवर ट्रांसप्लांट. समटाइम्स कॉज ढूंढने के लिए आप अदर वायरसेस को चेक कर लेते हैं, बट यू नो मोस्टली दीज पेशेंट्स डिटेरियोरेट because of
upper GI bleed or infections. So that's all I had to say. Over to Asad. Thank you, sir. Uzair, if you can stop share, please. Any questions in this regard? अच्छा सर, ये पूछना था कि क्या ये वही जो रूल ऑफ 3 बताते होते हैं सर के 1% improve, 1/3 improve, 1/3 remain same, 1/3 deteriorate during treatment. तो जो भी पेशेंट डिटीरियरेट करेगा उसमें हम ऐसे ही करेंगे कि 3 to 5 डेज का स्टॉप करके उसको रिससिटेट करके दोबारा से एंटीवायरल स्टार्ट करें, क्योंकि पेशेंट इसमें काफ़ी वो अक्सर रिलक्टेंट हो जाते हैं, वो तो एंटीवायरल थेरेपी को ही कल्परेट करार देते हैं और फिर वो उनको दोबारा से इस पे काउंसल करना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है कि आप ये मेडिकेशंस टैबलेट्स सी की जारी रखें, या कि एक दफ़ा पेशेंट डिटीरियरेट हो जाए तो फिर हमें अगर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो क्या हमें दोबारा से ये ट्रायल लेना चाहिए कि इसको दोबारा से स्टार्ट करके देखें क्या होता है पेशेंट को? जी, वेरी गुड थॉट्स फारूक। अगर 2 हफ्ते का गैप आ जाए बिटवीन ट्रीटमेंट के रोकने का, तो फिर जनरली कहा जाता है कि इट्स ओवर। ऐसे पेशेंट्स में मैं आमतौर पे PCR चेक करता हूँ। अगर वो नेगेटिव हो तो अनदर PCR 2 to 3 months लेटर, अगर वो भी नेगेटिव हो तो चलो शुक्र है कि ख़त्म हो गया एंड आप सुख का सांस लें। अगर वो पॉजिटिव हो तो आई सर्टनली रीट्रीट, पर्टिकुलरली अगर ये ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स नहीं हैं, क्योंकि और तो कुछ रहा नहीं है। उनको कन्विंस किया जाता है कि आपके पास यही है कि आग बुझा दें, शायद मजीद ना जले, ट्रांसप्लांट की ऑप्शन आपके पास है नहीं। सो या वो कराना नहीं चाहते, या उनके पास फंडिंग नहीं होती, या उनके पास डोनर नहीं होता। मेजॉरिटी के पास तो यही प्रॉब्लम होता है। तो यस, दोनों ऑप्शंस हैं। कंटिन्यू, अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन है, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए रुक गई है तो होल्ड ऑन, PCR चेक करें, 3 महीने के बाद फिर चेक करें। अगर वो नेगेटिव है तो ऑल डन, अगर वो पॉजिटिव आता है तो देन यू हैव टू रीस्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मे बी पेशेंट को रीएश्योर करने के लिए सॉफ्ट डेक्ला की बजाय सॉफ्ट वेल दे दें विद राइबा। ड्यूरेशन भी उसमें कम हो जाएगी 3 months की, पेशेंट भी ज़्यादा कंप्लायंस होगा। सो अगर वो अफोर्ड नहीं करता तो ये गवर्नमेंट की ही सॉफ्ट डेक राइबा इज गुड एनफ। ऑफ कोर्स 85% से ज़्यादा तो रिस्पॉन्स नहीं होगा इन इस टाइप ऑफ पेशेंट्स में, बट इवन दैट इज़ गुड एनफ। 0 से तो बेहतर है। तो आई थिंक कि आपकी थॉट्स ठीक हैं, इसी तरह करना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पेशेंट कहता है इलाज लेता सी ते ब्लीडिंग हो गई, सारा काम दवाइयां ने किया है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस देम। ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई, अगर पेशेंट कन्विंस ना हो तो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। थैंक यू जी। थैंक यू सर। फारूक, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि सर, इन एक्सपीरियंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हेपेटाइटिस के जितने भी हमारे सेशन हुए हैं, प्री ट्रीटमेंट काउंसलिंग इस मरीज की बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली की, क्योंकि ये जो एज पे होते हैं तो ये वो लोग हैं जो जिनको शुरू करने से पहले इवन इन माय जो हमारा ट्रस्ट का भी क्लिनिक है, आई यूजुअली टॉक टू देम बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। जस्ट आपको रिस्क बेनिफिट जो है ना वो क्लियरली एक्सप्लेन करने पड़ते हैं एंड वेरी क्लियरली मेंशनिंग, जिस तरह भी आप उन्हें एग्जांपल देना चाहें कि थिंग्स कैन डिटीरियरेट एंड इफ दे डिटीरियरेट थिंग्स कैन एंड अप इन ट्रांसप्लांट, और ये दवाई की वजह से नहीं होगा, ये बहाना बनता है, वैसे भी वो डिटीरियरेट कर सकते हैं। तो वो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर विद देम एंड देन यू नो, और मैं उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ कि ये सारा कुछ प्रोज एंड कॉन्स। और अगर नुस्खा कभी आपने देखा हो तो हम लिखते हैं
जो स्टार्ट डेट होती है DAA विद रिजर्वेशंस, कि आपने शुरू तो किया है लेकिन विद रिजर्वेशंस शुरू किया है। कोई ये बिल्कुल प्लेन सिंपल आउटराइट नहीं है कि आपने किसी को ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो जस्ट एक एक मुझे नहीं पता इसकी मेडिको लीगल क्या वैल्यू होगी, बट देन यू जस्ट मेंशन इट कि हमने सारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था फैमिली को। जी फारूक सर, जो सॉफ्ट डेक्ला रजीम है और सॉफ्ट वेल रजीम है, इन दोनों को अगर सेरोटिक में स्टार्ट किया जाए कंपनसेटेड सेरोटिक में, तो दोनों के साथ डीकम्पनसेशन के चांसेस सेम हैं या कि डेक्ला के साथ ज्यादा हैं? जहां तक दवाई का ताल्लुक है, इट डज नॉट कॉज डीकम्पनसेशन। डीकम्पनसेशन आइदर कोई इवेंट करेगा या डिजीज करेगी। एडवांटेजेस हैं सॉफ्ट वेल के in terms of slightly better response rate, 1, 2 shorter duration of treatment। लेकिन मैं फिर रेकमेंड करूंगा कि ऑल्दो राइबावरिन वेस्ट में इस्तेमाल नहीं होती, हमारे जीनोटाइप 3 में राइबावरिन भी थ्रो करनी चाहिए दोनों के साथ, चाहे सॉफ्ट डेक्ला का 6 माह का रेजीम हो या सॉफ्ट वेल का 3 माह का रेजीम हो। राइबावरिन जरूर दें इफ द पेशेंट कैन टॉलरेट इट, और क्लोज मॉनिटरिंग करें ताकि अननेसेसरीली कोई बहुत सीवियर अनीमिया ना हो जाए। बट आई सर्टनली इफ द पेशेंट कैन अफोर्ड इट, सॉफ्ट वेल उसको दें विद राइबावरिन, अगर नहीं अफोर्ड करता तो सॉफ्ट डेक्ला दें। बट treatment works, it does not cause decompensation, it does not cause HCC, it is just के disease process या कोई precipitating event उनको खराब करता है। These people are very very fragile, very sensitive, कुछ भी हो जाए they deteriorate, like जैसे ये patient हुआ, upper GI bleeding, वेरिसियल भी नहीं थी, अल्सर bleeding थी, and देखें का बिलिरुबिन कहाँ पहुंच गई, और all this। सो बहुत कुछ होता है। सो आई थिंक के आपने ट्रीट करना है, कोशिश यही करनी है। ये जरूर है कि ये इवेंट्स आप बचा नहीं सकते होंगे, लेकिन जैसे असद साहब ने कहा कि प्री ट्रीटमेंट काउंसलिंग मे हेल्प अ लिटिल बिट, नॉट ऑलवेज बट इट मे हेल्प अ लिटिल, सो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर प्री ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। जी, इसमें एक और चीज भी है कि आई एम करेंटली पार्ट ऑफ अ स्टडी विद ग्रैहम फॉस्टर, और वेयर आई थिंक वी आर लुकिंग एट ट्रीटिंग अराउंड 2500 to 3000 पेशेंट्स विद सॉफ्ट डेक और सॉफ्ट डेक राइबा। जो उसकी जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि एज यू गो एप्री के ऊपर हम सॉफ्ट डेक राइबा देते हैं 6 months, और वैसे इन अ गुड रिस्क केस सॉफ्ट डेक। And we are expecting to find around 250 patients who do not respond to soft DEC. तो इस सारे about 3000 पेशेंट में से बल्कि 4000 पेशेंट में से उनका ख्याल था कि अगर 5% भी हो तो we are looking at, obviously इन सारों की जेनेटिक वो सीक्वेंसिंग वो सब कुछ होगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज ये है, रीट्रीटमेंट फेज में जो अप्रूवल है वो सॉफ्ट वेल है 12 versus 24 weeks. There is no ribavirin in it. तो it will be very interesting, क्योंकि ये मेरी बड़ी जब ये सारी प्रोटोकॉल हो रही थी तो हमें तो रिबाविरिन इतनी पसंद है कि मैंने कहा यार हम तो सोच भी नहीं सकते कि जिस तरह भी अल्ताफ साहब ने बात की, we would really want ribavirin to be part of this thing. But I think they are really after DAC versus well के इन दोनों में के कितना कोई लड़ाई झगड़ा है, तो it will be interesting. So जो retreatment है that is soft well जो के डबल ब्लाइंड जो के होगा ब्लाइंड होगा 12 versus 24 weeks, and let's see how it goes. तो अभी है 2-3 साल इस सवाल का, और ऑफ कोर्स इसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी है, रैब्स वगैरह सारा कुछ देखा जाएगा। अली हैदर इज हियर। अली, डॉक्टर अली, वेलकम, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमेशा सर हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहते हैं सर अल्ताफ साहब से,
और वेरी लेटली ज्वाइन किया, अभी आए क्लिनिक से ज्वाइन किया। तो सर से एक रहनुमाई चाहिए कि दो चीज़ें हैं, सॉफ प्लस वेल्पा जो है विथ रेबावरिन हम दे दें इन डीकम्पेंसेटेड या कंपेंसेटेड एस्टेब्लिश्ड क्रॉनिक लिवर डिजीज विथ पोर्टल हाइपरटेंशन, या जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उनको भी आप रिकमेंड करेंगे? और जहां रिबावरिन की गाइडलाइंस में अगर इंडिकेशन नहीं है तो हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे सर? पहला क्वेश्चन ये है, फिर एक क्वेश्चन और भी है, काइंडली टाइम दीजिएगा। थैंक यू सर। राइट, देखें जी, गाइडलाइंस में तो यही है कि आप सॉफ्ट वेल और सॉफ्ट डेक्ला को विदाउट राइबावरिन दें इन पेशेंट्स में कंपनसेटेड सिरोटिक्स में। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल नहीं है। आप सबको पता है कि हमारा जीनोटाइप 3 डेफिनेटली इसमें बेसलाइन रैसेस भी हैं और ऑन ट्रीटमेंट भी रेजिस्टेंट एसोसिएटेड स्ट्रेन्स या वेरिएंट्स बनते हैं। सो ये भी बात डॉक्यूमेंटेड है कि लॉन्गर ट्रीटमेंट एंड एडिशन ऑफ राइबावरिन हेल्प्स। गाइडलाइंस वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बनी है। हमारी गाइडलाइंस में मैं आपको पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा कि नॉन सिरोटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता आप राइबावरिन दें या ना दें। सो आई डोंट गिव ऑन अ पर्सनल नोट इन नॉन सिरोटिक्स, चाहे वो फाइब्रोस्कैन पे या एप्री लेस देन 1.5, आई डोंट गिव राइबावरिन। लेकिन कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड सिरोटिक्स दोनों में ऑन अ पर्सनल नोट अगेंस्ट द गाइडलाइंस आई गिव राइबावरिन। होगा ये कि ये पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपके पास जाएगा तो आप कहेंगे ओहो राइबावरिन देकर इलाज करते तो रिस्पॉन्स तो आ जाना था। तो अब आप दोबारा 6 माह का इलाज लें और विद राइबावरिन लें। सो ये चीज बीच में से निकालने के लिए I have always almost 100% of cases अगर पेशेंट टॉलरेट करे तो सिरोटिक और डीकम्पनसेटेड सिरोटिक में whatever the regimen, चाहे वो सॉफ्ट डेक्ला हो या सॉफ्ट वेल्पा हो, फर्क सिर्फ ये है कि सॉफ्ट वेल्पा 3 months के लिए देते हैं राइबावरिन के साथ और सॉफ्ट डेक्ला 6 माह के लिए देते हैं राइबावरिन के साथ। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल आई वुड सर्टेनली रेकमेंड कि राइबावरिन ऐड करें और साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे उसको क्लोजली मॉनिटर करें। लेकिन वेस्ट की तरह हमारे पेशेंट्स इतना पुअर टॉलरेट नहीं करते जितना ग्रैम फॉस्टर बताता है कि वो हेट करते हैं वहां पर। हमारे पेशेंट्स डू टॉलरेट इट बेटर प्रोवाइडेड आप साथ फॉलिक एसिड दे दें, क्लोज मॉनिटरिंग कर लें, अनीमिया को वॉच करें, डोज एडजस्टमेंट करें रीनल इम्पेयरमेंट के लिए और अनीमिया के लिए जैसी रिकमेंडेशंस हैं, तो ये काम चल जाता है। सो ऑफ कोर्स ये जो डेटा असद साहब की स्टडी निकालेगी उसमें ये पता चल जाएगा कि बेसलाइन और ऑन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट वेरिएंट्स कितने बन रहे हैं जिनको आपने इलाज किया है विद दीज रेजिमेंट्स, एंड सर्टेनली दैट विल हेल्प टू मेक फ्यूचर रिकमेंडेशंस फॉर आवर रीजन। लेकिन अभी के लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप सिरोटिक कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड में राइबावरिन ऐड करने की कोशिश जरूर करें जितनी भी दे सके। जी थैंक यू। जी दूसरा क्वेश्चन भी था आपका अली हैदर। जी थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस एलैबोरेशन। दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली ये जो सिनेरियो था पेशेंट का उसमें बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव था, सो वन शुड गो फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जो हम भूलते हैं। तो कैन वी कंबाइन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी कराएं और हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन भी कराएं, specifically this group of patient with established chronic liver disease and portal hypertension? जी सर, थैंक यू। राइट, बी की वैक्सीनेशन तो 100% करानी, क्योंकि हमारा तो रिकमेंडेशन है कि 2% से ज्यादा प्रेवलेंस है इस कंट्री में, तो एवरीवन शुड बी वैक्सीनेटेड, सो नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ई की वैक्सीन
आपने ये पॉइंट प्रूव करना है बाय डूइंग अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड स्टडी कि आप 1000 सेरोटिक्स को वैक्सीन करते हैं और 1000 सेरोटिक्स को वैक्सीन नहीं करते, और फिर आप देखते हैं कि इनमें से कितनों को हेपेटाइटिस ई होता है जो कि कंट्रोल आर्म है, और कितनों को हेपेटाइटिस ई होता है जो कि जिनको आपने वैक्सीन दी है। सो अगर आप ये नहीं कर, जब तक आप नहीं कर रहे, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स अब हेपेटाइटिस ई के साथ आ रहे हैं एंड दे डिटीरियरेट वेरी बैडली। तो आई एम जो भी एक्सेप्ट करता है उसको रेकमेंड कर रहा हूँ सेलेक्टेड पेशेंट्स को जो अंडरस्टैंड करते हैं कि आप सिरोटिक हैं, आप हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन लगाएं, और बी का तो क्वेश्चन ही नहीं है, हर एक को लगानी है। लेकिन ये पॉइंट हमें प्रूव करने की जरूरत है क्योंकि इसका डेटा कहीं नहीं है। जो चाइनीज स्टडी थी उसमें सिरोटिक्स तो नहीं थे ना, और उनका जीनोटाइप भी फर्क है, उनका जीनोटाइप 3-4 है, हमारा जीनोटाइप 1 है। हेपेटाइटिस ई की बात कर रहा हूँ। सो हमें ये पॉइंट अपनी पॉपुलेशन में प्रूव करने की जरूरत है, विच वी शुड डू। हमारे किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की जिम्मेदारी लगाएं, ये स्टडी करे। 100 अगर 1000 नहीं तो 100 पेशेंट दोनों आर्म में रख लें, करके कुछ तो डेटा कलेक्ट करें ना। सो वी नीड टू प्रूव दिस पॉइंट, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट आई वुड सर्टेनली recommend if the patient accepts it. सर आपका फॉलो अप टाइम इसमें कितना होगा पोस्ट हेपेटाइटिस ई वैक्सीनेशन में? जो अगर 2 आर्म्स बनाए तो फॉलो अप टाइम हम 1 साल रखें, 3 साल रखें, 5 साल रखें? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 3 साल। 3 साल है, लेकिन उनको फॉलो करते रहें ताकि वो लॉन्ग टर्म डेटा भी आपके पास आ जाए। बड़ा क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब कि उनको आपने ट्रेस करना है, देखना है कि कभी उनको हेपेटाइटिस ई हुआ या नहीं हुआ, उनके टेस्ट करने पड़ेंगे अगर कोई जॉन्डिस होगा या कोई डिटीरिएशन होगी। सो यू नो इट्स नॉट इजी बट डूएबल। अगर हम इनको सर प्रेस्क्राइब कर देते हैं और वो काउंसिल करते हैं, वो एग्री हो जाते हैं, तो उनको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई की दोनों की वैक्सीनेशन हम एडवाइस करते हैं। आर वी रॉन्ग और राइट? जी देखें, आउटसाइड विदाउट नोइंग द डेटा आई वुड सर्टेनली रिकमेंड इट। आई एम आल्सो डूइंग इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अली। ये क्वेश्चन फारूक का है अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिबाविरिन। फारूक, ये इट्स अ कंसर्न क्योंकि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में अब रिबाविरिन बहुत मुश्किल से मिल रही है, बल्कि नहीं मिल रही। तो थोड़ी सी आपको मसल फ्लैक्सिंग और ब्लैकमेलिंग में होना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग इतनी सॉफ्ट वेल्पा लिखते हैं यूजुअली प्राइवेटली, तो मैंने सबसे कहा हुआ है कि मुझे रिबाविरिन दो। अब वो पीछे कुछ ने कहा जी आप खरीद लें, फिर मैंने कहा यार वो थोड़ा सा आप कह दें हम लिखनी बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल में आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। क्योंकि एक मैं आपको बात बता दूं कि जो ब्रेकअप है एप्री के बेसिस के ऊपर, वो 60-65% एप्री लेस देन 1.5 है, और 35-40% एप्री मोर देन 1.5 है। तो you need ribavirin for about 40 out of 100 पेशेंट। और इसमें भी बड़े कम लोग हैं मेरे एक्सपीरियंस में जो पूरे 1200 मिलीग्राम पे जाते हैं। यूजुअली 800 मिलीग्राम और इसके आसपास घूम रहे होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा एनीमिया और बाकी चीजों को भी आप देख के। और ऐसे भी हैं जो 600 मिलीग्राम पे, 400 मिलीग्राम पे चल रहे होते हैं, जिस क्योंकि ये इसके एनीमिया का कंसर्न जो है वो रहता है। So I think thank you very much everybody. It's been a wonderful session. Dr. Altaf, thank you very much. मैं ज्यादा शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, पिछली दफा डॉक्टर फारूक खान भी नाराज हो गया तो over if then जी किरण, over to you for any next announcements. आपके कुछ सेशन and upcoming sessions हैं please. सॉरी जी अपकमिंग सेशन हमारा आईबीडी एको स्टार्ट हुई है, वो आ रहा है आई थिंक 26 को है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और इसके अलावा एक और 26 को दूसरा सेशन। उजैर आप जरा प्लीज बता दीजिएगा। दूसरा सेशन नेक्स्ट वेडनेसडे को है ऑन डिस्पेप्सिया।
at 2:30. जी, digestive Yes. series। जी, डाइजेस्टिव डिजीज Thank एको का you. जो सेशन है और that इसके will be अलावा by आपको Dr. आसिफ भी अनाउंस जैदी। किया जा जी, चुका है कि हम जी किरण, मैं जो डाइजेस्टिव डिजीज का सेशन है that will be by आसिफ जैदी, वेरी गुड फ्रेंड और बड़ा अच्छा टीचर है फ्रॉम शेख जायद हॉस्पिटल। और जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो कि हम कर रहे हैं विद साउथ एशियन आईबीडी अलायंस इन अमेरिका, उनके स्पीकर हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। It's a very dedicated group of gastroenterologists जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, maybe a few from Indian origin, who are come together for this inflammatory bowel disease echo. So that will be 10 p.m. I think 26th of September. और जो डाइजेस्टिव डिजीज है वो आफ्टरनून में है। जी किरण, सॉरी। जी, डाइजेस्टिव डिजीज एको 2:30 बजे का सेशन होता है जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साफ आलम साहब। और इस पहले भी जब अनाउंस कर चुकी हूँ कि वी डू इनकरेज कि आप केसेस जो है स्पोक्स भी हमें दें, ताकि, और इसमें यह है कि हम, अगर आप हेजिडेंट हैं तो हम भी आपके लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उज़ैर से फॉर्म की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना केस तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी एंड फ्लोरेंस लेबोरेटरी लिमिटेड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड एजुकेशनल ग्रांट। और इसके अलावा हमारी टीम पारसा ट्रस्ट एंड पारसा एको पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। उज़ैर, यू कैन कॉल ऑफ द मीटिंग। थैंक यू जी। Sure, ma'am. Thank you. Allah Hafiz, everybody.